Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 8 of the course Software Quality Engineering. Before we formally start today's lecture, let us revise what we have discussed in our previous lecture. If you precisely remember, we had some more discussions on quality concepts. We explored different ways and we explored some new dimensions of the quality concepts. We also talked about a new concept related to quality, and that is quality control. Usually when we say quality control, we are talking about the management, the controlling and ensuring that the quality is there in the software or the product which we are talking about. We also had a long discussion on the cost of quality. There are so many types of cost associated with the quality, and some of the costs are failure cost, some of the costs are related to management type of issues. So we discussed different types of cost. We also explored that we need to make sure that in order to achieve a certain aspect of quality, the cost should be noted down first. The cost should be evaluated first. If the cost is too high than the permissible limit, then you avoid, then you perhaps think of going for some alternate, or then you compromise. When we say cost, we do not exactly mean cost in terms of money, but we mean cost in terms of time, cost in terms of effort, and cost in terms of money as well. So money, effort and time, together these three components make a cost of something. So there are always trade-off. So you put more cost into it, obviously then you can achieve relevant quality or you can meet the quality objective. But sometimes you are limited to spend too much cost. You do not have sufficient budget, you do not have sufficient time, you do not have enough resources to put into that in order to achieve a certain aspect of the quality. So we need to carefully think about these types of cost. और इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ है, आप फोरकास्ट कर लेते हैं, आप एस्टिमेट कर लेते हैं. ठीक है, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोसेस तो चल रहा है, ठीक है, आप तो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी इंजीनियरिंग के लिए क्या एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये आप देख लेते हैं. जिसकी एग्जांपल याद रखें, जैसा हमने पहले भी बात की थी कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात कर रहे हैं, आप क्वालिटी इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, आपकी एक फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू कमेटी आएगी, बाहर से कोई थर्ड पार्टी पीपल आप बुला रहे हैं ताकि वो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ कर सकें. अब उस टीम का आना, जाहिर है वो टीम अगर आएगी और आपके सॉफ्टवेयर पर फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू कर रही है, सो वो कुछ आपसे पैसे चार्ज करेगी. ठीक है, आपको एडवांस उनसे टाइम लेना पड़ेगा. ठीक है, आपको एडवांस उनसे जो है वो बुकिंग करवानी पड़ेगी. वो टीम जितने भी लोगों की है, 4 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की, और वो आपके सॉफ्टवेयर पर फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू करती है. चाहे आपके सॉफ्टवेयर हाउस में आकर फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू करे, या आप अपने सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन या जितना सॉफ्टवेयर जिस फॉर्म में डेवलप हो गया वो आर्टिफैक्ट आप उस फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के लिए भेजें. तो ये प्रोसेस इट विल इन्वॉल्व कॉस्ट. सो आप कॉस्ट एज अ सेपरेट भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू पुट appropriate enough quality in the software. We also had a discussion about statistical quality assurance, and lastly we talked about the software quality assurance plan. So actually we plan something.
और हमने ये बात की थी कि ऐसा नहीं होता कि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आप जो है वो अचानक उठ के चले जाएं या अचानक आपको ख्याल आ जाए हाँ जी मैं क्वालिटी इंजीनियरिंग करना चाहता हूं या क्वालिटी एश्योरेंस करना चाहता हूं, बल्कि यू प्लान, ठीक है, और उस प्लान के अकॉर्डिंगली आप चलते हैं। प्लान में आप कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली आप सर्टन एक्टिविटीज सेलेक्ट करते हैं, उन एक्टिविटीज के अगेंस्ट आप सर्टन असेसमेंट और मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप चीज़ों को लेकर चलते हैं। सो एसक्यूए प्लान में टाइम भी शामिल होगा, कॉस्ट भी शामिल होगी, बजट भी शामिल होगा, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, ये सारी चीज़ें आप प्लान करते हैं और दैट इज पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। सो यू मस्ट प्लान द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस अकॉर्डिंगली। सो दीज वर briefly the outlines of our previous lecture. Let us proceed towards the today's lecture. We are starting the second part of our course, and in fact part 2A, which is software testing. So mainly we will be talking about testing in next couple of lectures. Our discussion on testing will be continued. We will explore what testing is, why is it important, and how testing ensures the quality in a particular software. Here are the outlines of today's lecture. So first of all, we will talk about what exactly testing is. Why do we need testing? Why do we do testing? टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है, टेस्टिंग की ज़रूरत क्या है, टेस्टिंग की हिस्ट्री क्या है, क्या शुरू से ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टेस्टिंग की जाती थी या जो है ये लेटर ऑन ये कोई कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है, और टेस्टिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, मेनली इनमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे। सो चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स की। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में ये शामिल है कि आप टेस्टिंग की बेसिक समझ जाएं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों की जाती है, और क्या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से मुराद सिर्फ कोड का टेस्ट करना है, ठीक है, या टेस्टिंग से मुराद सॉफ्टवेयर के हर फेज में, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर फेज में जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। और इसके अलावा आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में ये भी शामिल है कि आप डिस्टिंग्विश कर सकें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के दरमियान, जिनमें से मेनली है वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या? सो टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग एरर्स। यहां पे आप थोड़ा सा गौर करें इस चीज पर कि आप किसी चीज को, आप किसी प्रोग्राम को इस नीयत से रन कर रहे हैं कि उसमें से आप एरर्स निकालें। आप किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आप इसलिए रन कर रहे हैं कि आपका मकसद उसकी फंक्शनैलिटी देखना नहीं है, बल्कि आपका मकसद उसमें से एरर निकालना है। एरर निकालने की नीयत से अगर आप उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं, सो आप टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी देखना चाहते हैं, मेनली आप उस सॉफ्टवेयर के फीचर्स देखना चाहते हैं, तो आप उसको एक्चुअली टेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप उसको गो थ्रू कर रहे हैं कि हाँ जी ये जिस पर्पस के लिए वो सॉफ्टवेयर बना है वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं। एक्चुअली आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, एक्चुअली आप उसको टेस्टिंग में इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग की एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है जिस तरह आपकी कोई असाइनमेंट है, ठीक है, आप असाइनमेंट अपने इंस्ट्रक्टर को जमा कराते हैं, या स्कूल का कोई बच्चा जो है वो अपना होमवर्क जो है वो टीचर को दिखाता है। इवैल्यूएट करना टीचर का काम है। टीचर इवैल्यूएट या इंस्ट्रक्टर इवैल्यूएशन किस बेस पे करता है? इंस्ट्रक्टर ये नहीं देखता कि आपने क्या काम ठीक किया हुआ है, इंस्ट्रक्टर ये देखता है कि आपने जो काम किया इसमें कोई एरर तो नहीं है, कहीं पे आपने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं छोड़े, या अगर बड़ी क्लास की असाइनमेंट है तो जो असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो तो उसमें मौजूद नहीं है, तो उसकी इंटेंशन
ये नहीं है कि आपने काम पूरा किया है या नहीं। उसकी इंटेंशन, इंस्ट्रक्टर की इंटेंशन ये होती है कि वो ये देखे कि इसमें कहां पे क्या चीज मिसिंग है, और अगर कोई चीज मिसिंग पाई जाती है सो वो इंस्ट्रक्टर अकॉर्डिंगली मार्क्स को डिडक्ट कर देता है, काट देता है, ठीक है। और अगर उसमें किसी किस्म का एरर, बग, किसी किस्म की कमी उस असाइनमेंट में नहीं है सो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। सो टेस्टिंग भी बिल्कुल इसी नियत से, इसी इंटेंशन से की जाती है कि उसमें, उस सॉफ्टवेयर में, उस प्रोग्राम में एरर्स तलाश किए जाएं। एरर्स जरूर होंगे, क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा जाता है, कोई कोड लिखा जाता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, हम कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि ये डेवलप्ड सॉफ्टवेयर हर लिहाज से परफेक्ट है। बिल्कुल नहीं। ये कोई अगर क्लेम करता है कि मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, या हमारे सॉफ्टवेयर हाउस ने, या मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो परफेक्ट है, उसमें किसी किस्म का एरर नहीं है, तो ये क्लेम रॉन्ग है। ऐसा क्लेम नहीं किया जा सकता। तो अगर ऐसा क्लेम नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है कि उसमें जरूर कहीं ना कहीं पे एरर्स होंगे। वो एरर्स छोटे हैं या बड़े हैं ये तो बात की बात है, ठीक है, लेकिन एरर्स, बग्स उसमें जरूर होंगे, डिफेक्ट्स, फॉल्ट्स उसमें जरूर होंगी। वो एरर्स, वो बग्स फाइंड आउट करना, यही टेस्टिंग का पर्पस है। और मकसद टेस्टिंग का ये है कि आप एरर्स फाइंड करके उसको रेक्टिफाई करें, उसको ठीक करें, बजाय इसके कि आप उन एरर्स की बेस पर आगे डेवलपमेंट करते जाएं और लेटर ऑन आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट होके आप कस्टमर को हैंड ओवर कर दें और कस्टमर जाके आपको कंप्लेंट करे, कस्टमर जाके फाइंड आउट करे कि भाई ये चीज तो ठीक काम कर ही नहीं है। आप शुरू में ही वो एरर फाइंड करके उसको ठीक कर देना चाहते हैं ताकि आपके सॉफ्टवेयर में क्वालिटी आए और जिस पर्पस के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो अकॉर्डिंगली अकॉम्प्लिश हो जाए, ठीक है। सो टेस्टिंग इस नियत से की जाती है कि आप एरर्स को वक्त पर फाइंड आउट करें, रेक्टिफाई करें, ठीक करें, ठीक है। और हमने ये बात भी की थी कि अगर एरर्स होंगे किसी एक फेज में, ठीक है, तो वो एरर्स अगले फेजेस में प्रोपोगेट करते जाते हैं। अगर एनालिसिस फेज में कोई एरर आ गया, रिक्वायरमेंट आपने ठीक स्पेसिफाई नहीं की, ठीक है, सो ये मिस्ड रिक्वायरमेंट, मिस्ड कम्युनिकेशन, मिस्ड इंटरप्रिटेशन, जो भी एरर था वो डिजाइन फेज में भी आएगा, वो कोडिंग फेज में भी आएगा, वो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस जब बन जाएगा और फुली फंक्शनल सॉफ्टवेयर हो जाएगा, वो एरर, मसले, मसाइल उधर भी होंगे, और हत्ता कि जब आप सॉफ्टवेयर क्लाइंट को हैंड ओवर कर देंगे ये मसले स्टिल कायम रहेंगे। सो मकसद क्या हुआ कि आप शुरू में ही टेस्टिंग करें, आइडेंटिफाई करें कोई एरर्स हैं, अगर हैं तो उनको वहीं पे ही रोक के ठीक करें ताकि ये एरर्स अगले फेजेस में प्रोपोगेट ना हो। तो टेस्टिंग को एक तरीके से हम ऐसे डिफाइन करते हैं। टेस्टिंग को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है और वही है टेस्टिंग कैन शो द प्रेजेंस ऑफ बग्स बट नेवर देयर एब्सेंस। अभी मैंने यही बात की कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं है। डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, इसके अलावा बैकएंड पे डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, उसमें जरूर कुछ ना कुछ मसला होगा, परफेक्ट कुछ भी नहीं है। और बीइंग मुस्लिम हमारा ये बिलीव है कि परफेक्ट इस पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह की जात है, ठीक है। सो बाकी जितनी भी चीजें हैं उनमें कहीं ना कहीं पे कमी है, सॉफ्टवेयर में भी कहीं ना कहीं पे कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं पे कमी जरूर होगी। सो आप टेस्टिंग में क्या चीज करते हैं, उस बग्स की प्रेजेंस को फाइंड करते हैं, उस बग्स की, उस एरर्स की प्रेजेंस आप ढूंढते हैं, ये शो करते हैं। और ठीक है, आपकी ये इंटेंशन नहीं होती कि हाँ जी ये जो मैंने सॉफ्टवेयर टेस्ट किया ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ठीक है। मकसद आपका ये होता है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एरर होगा, उसको आप आइडेंटिफाई करें, उसको आप फाइंड आउट करें, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर लें, एक इंटरफेस है, एक वेब पेज का इंटरफेस है, वो आप टेस्ट कर रहे हैं जिसमें लेट्स से आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो बिल्डअप करनी है, कोई फॉर्म फिलअप करना है, अपनी फोटो ब्राउज करनी है और फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। अब आप अगर इस फ्रंट एंड, इस वेब पेज को टेस्टिंग करना चाहें तो आपकी इंटेंशन ये होगी कि मैं ये देखूं कि इसमें एरर कहां पर है, ठीक है। हो सकता है फाइल की ब्राउजिंग में एरर हो
हो सकता है जिस टाइप के आप इमेजेस लेना चाह रहे हैं, अपलोड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हुआ है कि ये सिर्फ JPEG के इमेज अपलोड करेगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और भी इमेज अपलोड करने की कोशिश करते हैं वो दूसरा इमेज भी ले लेता है। या फॉर एग्जाम्पल आप किसी वेबसाइट पर अपनी CV या रेज्यूमे जो है वो अपलोड करना चाह रहे हैं और लिखा हुआ है कि ये सिर्फ PDF की फाइल लेगा। सो जब आप टेस्टिंग करेंगे तो आपकी एक इंटेंशन ये भी होती है कि मैं PDF के अलावा कोई और फाइल भी अपलोड करके देखूं क्या ये फॉर्म उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, सो ये डिजाइन लेवल के एरर्स हो सकते हैं जिनको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक बड़ा सिंपलेस्ट एरर जो आप ढूंढ सकते हैं वो ये है कि क्या इस पूरे फॉर्म में कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक को ढूंढने की नीयत से उस वेब पेज को देखना, ये भी टेस्टिंग है। ठीक है, ये भी टेस्टिंग है। इसी तरह जो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है वो ये है कि इस वेब पेज पे फॉन्ट का साइज, ठीक है, वो विजिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर ये फॉन्ट का साइज लेट्स से इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोला जाए तो कैसा होगा, अगर ये किसी दूसरे ब्राउजर पे खोला जाए, क्रोम पे खोला जाए या मोज़िला फायरफॉक्स पे खोला जाए, उस पे ये साइज, उस पे ये लेआउट कैसा लगेगा, कैसा होगा, कंपैटिबल होगा नहीं होगा। ये सारी की सारी चीजें अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, सो आपका मकसद यही है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई बग, कोई एरर जरूर होगा, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको ठीक किया जाए और उसको फिर ठीक करने के बाद आगे जो भी डेवलपमेंट के फेजेस हैं वहां पे आप जा सकते हैं। सो बेसिकली ये पर्पस है, ये होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग का मतलब ये है कि आप सिंपली जिस तरह हम अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, क्वालिटी का आपने मयार रख लिया कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूं कि अगर और हम ये बात करते आ रहे हैं कि हर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के मयार डिफरेंट हो सकते हैं। आप ये कर रहे हैं कि आपने अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का क्या मयार है वो आपने सेट कर लिया। टेस्टिंग भी इसी तरह है। टेस्टिंग में भी आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं कि आप एग्जैक्टली क्या चीज देखना चाह रहे हैं। आप सिर्फ ज्यादा फोकस एक ब्यूटीफुल इंटरफेस पर करना चाह रहे हैं या आप ज्यादा फोकस उसके कलर कॉम्बिनेशन पर करना चाह रहे हैं, या आप ज्यादा फोकस बैकएंड पे जो डेटाबेस है उस पे करना चाह रहे हैं, क्यूरीज किस तरीके से लिखी गई हैं उस पे करना चाह रहे हैं। सो यू हैव सम ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन विच यू डू टेस्टिंग। सो ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग हमेशा होना चाहिए। मकसद बामकसद टेस्टिंग पहले से आप स्पेसिफाई कर लें और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली चलते हैं। सो ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग में क्या चीजें आती हैं, अनकवर एज मेनी एरर्स और बग्स एज पॉसिबल इन अ गिवन प्रोडक्ट, और जो भी प्रोड्यूस आप कर रहे हैं उसमें आप एरर्स ढूंढने हैं। ठीक है, एज मेनी मकसद ये होगा, ऐसा नहीं है कि आप टेस्टिंग करें, इंटरफेस टेस्टिंग करें और आपको सिर्फ एक एरर नजर आ गया तो आप कहें हाँ जी बस एक एरर नजर आ गया, अब उम्मीद है इसमें और एरर्स नहीं होंगे, चलिए आगे चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर एक एरर आया है तो इसका इस बात के चांसेस हैं कि सिमिलर एरर्स और भी होंगे। अगर एक जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो इस बात के चांसेस हैं कि दूसरी जगह पे भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे। अगर एक जगह पे क्यूरी डिजाइन में कोई मसले मसाइल हैं तो इस बात के चांसेस हैं कि सॉफ्टवेयर के दूसरे पार्ट्स में भी, डेटाबेस के दूसरे पार्ट्स में भी क्यूरी डिजाइन में एरर्स होंगे। सो मकसद आपका ये है कि जितने ज्यादा एरर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो आप फाइंड आउट करें, क्योंकि जितने ज्यादा आप एरर्स फाइंड आउट करेंगे इसका मतलब यह है कि उतनी ही सॉफ्टवेयर में क्वालिटी आ जाएगी। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेट अ गिवन सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट मैचिंग इट्स रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। टेस्टिंग आप इस नीयत से भी करते हैं, एक तो हमने बेसिक जो चीजें हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स देख लिए, कलर कॉम्बिनेशन देख ली, फ्रंट एंड की बात करूं, बैक एंड पे आप देखें तो डेटाबेस है। ओवरऑल आपका मकसद ये है कि ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, कस्टमर ने ये चीजें मांगी थी। अब आप अगर टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि हाँ जी कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट नंबर 2 ये पूरी हो रही है या नहीं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट नंबर 3 इस तरीके से पूरी हो रही है। सो आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वो गिवन सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहा है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी है, एक कार हायरिंग रेंट अ कार कंपनी है, उन्होंने आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया है और उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करनी है कि मेरी सारी व्हीकल्स
जो है वो उनकी एक डेटाबेस हो, मेरे क्लाइंट्स जो है वो ऑनलाइन बुकिंग कर सकें। अगर उनको लेट से फ्यूचर की किसी डेट में बुकिंग करनी है, रिजर्वेशन करनी है, कि लेट से किसी क्लाइंट को अगले महीने की पहले हफ्ते में 3 दिन के लिए गाड़ी रेंट पर चाहिए, ठीक है, वो ये बुकिंग करना चाहता है, ठीक है। इसी तरह उसने कोई उस रेंट कार कंपनी ने कोई और रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई किया है। जब आप टेस्टिंग करेंगे सो आपका मकसद ये है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स थी ये पूरी हो रही है या नहीं। क्या रेंट कार कंपनी के किसी कस्टमर को ये कोई कस्टमर ऑनलाइन बुकिंग रिजर्वेशन कर सकेगा या नहीं? कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है। क्या जो दूसरी स्पेसिफिकेशंस थी, जो दूसरे फंक्शंस थे उस सॉफ्टवेयर से जो रिक्वायर्ड थे, वो मीट हो रहे हैं? सो टेस्टिंग में आप यही चीज चेक करना चाह रहे हैं। टेस्टिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वैलिडेट द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यूजिंग द मिनिमम कॉस्ट एंड एफर्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप टेस्टिंग भी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग जो है वो अल्टीमेटली क्वालिटी को इंश्योर करेगी, क्वालिटी लाएगी। अगर बग्स के साथ, एरर्स के साथ आपने सॉफ्टवेयर बना लिया और क्लाइंट को दे दिया, वो बाद में मसले मसाइल करेगा, ठीक है। तो आप टेस्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि उसमें क्वालिटी जो है वो बग्स, मसले मसाइल नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्वालिटी है। और एक चीज मैं जो बार बार कहता हूं वो ये है कि जितने एरर्स आपके कम होंगे उतनी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी ज्यादा होगी, जितने एरर्स बग्स ज्यादा होंगे उतनी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कम होगी। सो टेस्टिंग में आप क्या कर रहे हैं? बग्स को फाइंड आउट करके कम करते जा रहे हैं, एरर्स को फाइंड आउट करके कम करते जा रहे हैं, ताकि क्वालिटी बढ़ती जाए। लेकिन जहन में आपने ये रखना है कि क्वालिटी आए, टेस्टिंग आप परफॉर्म करें, लेकिन कोई बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा कॉस्ट और बहुत ज्यादा एफर्ट उस पर ना लगे, ठीक है। मिनिमम जितनी मुनासिब कॉस्ट और एफर्ट है। लेट्स से डिजाइन का एक फेज है, डिजाइन का फेज डिजाइन टीम ने 1 हफ्ते में बना दिया। अब डिजाइन का फेज बनने के बाद टेस्टिंग की जा रही है कि ये डिजाइन ठीक है या नहीं। डिजाइनर्स ने 1 हफ्ता लगा के पूरे सॉफ्टवेयर का डिजाइन कर दिया। अब अगर आप उसको टेस्टिंग करने में 3 हफ्ते लगा रहे हैं, ठीक है, सो ये इलॉजिकल है, ये टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव मीट न हुआ, ठीक है। या डिजाइन की टीम के 4 लोगों ने मिलकर पूरे सॉफ्टवेयर का डिजाइन कर दिया। यहां पे आप अगर उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं जी, हमें तो इस डिजाइन को टेस्ट करने के लिए, हमें कम से कम 8 लोग चाहिए, हमें कम से कम जो है वो इतने 1000 रुपीज का बजट चाहिए। सो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज अप्रोप्रिएट नहीं है, और ये चीज टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स में से नहीं है। सो टेस्टिंग भी आपने करनी है, लेकिन इस चीज को जहन में रखकर कि आपकी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, मनी एंड टाइम वो मिनिमम हो। और एक और ऑब्जेक्टिव लास्टली आपका ये भी हो सकता है कि जनरेट हाई क्वालिटी टेस्ट केस, परफॉर्म इफेक्टिव टेस्ट एंड इशू करेक्ट एंड हेल्पफुल प्रॉब्लम रिपोर्ट, ठीक है। टेस्ट केस सिनेरियोज आप बनाते हैं, ठीक है, टेस्ट केस सिनेरियोज बनाते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, ठीक है, कि एक वेब पेज है जिसपे आपने एक इमेज अपलोड करना है, ठीक है। वो इमेज का साइज है, मैक्सिमम जो इमेज का साइज अलाउड है वो लेट से 5 MB है, ठीक है। 5 MB की लेट से आप 3 अटैचमेंट्स, 3 फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। अब आप टेस्ट केस क्या बना रहे हैं? अब आप टेस्ट केस ये बना रहे हैं कि मैं 5.3 MB की फाइल्स में बनाऊंगा और उसको मैं जिप करके अपलोड करूंगा, ठीक है। जिप फाइल अपलोड करना यूजुअली अलाउड नहीं होना चाहिए। तो क्या ये सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। एरर्स अगर आप दे रहे हैं, एरर्स अगर उसमें आते हैं, आप जान के उसमें एरर डाल रहे हैं क्योंकि एक टेस्ट केस आपने बनाया है, सो वो सॉफ्टवेयर उसको कैसे रेक्टिफाई करता है। रेंट अ कार के सॉफ्टवेयर की मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है। अब टेस्ट केस आपने इसके लिए क्या बनाना है? एक एग्जांपल, आसान एग्जांपल के तौर पर आप ये ले सकते हैं कि एक कस्टमर ने फ्यूचर की कोई बुकिंग करनी है। सो टेस्ट केस आप ये बनाते हैं कि फ्यूचर डेट के बजाय, जाहिर है आप किसी बैक डेट में बुकिंग नहीं कर सकते, जो वक्त गुजर गया आप उसकी बुकिंग नहीं कर सकते। तो बैक डेट में अगर आप कोई तारीख देकर बुकिंग करना चाहें तो आपका ये सॉफ्टवेयर उस कस्टमर को एरर मैसेज देगा या नहीं देगा। लेट्स से एग्जांपल के तौर पर अगर आज नवंबर की 20 तारीख है, ठीक है, और एक्चुअली उस कस्टमर को कार की बुकिंग नवंबर की 25 तारीख के लिए करनी चाहिए,
तो टेस्ट केस में आप ये करते हैं कि आज की तारीख से पहले जो तारीख है, लेट्स से 18 नवंबर हो गई या 15 नवंबर हो गई, आप 15 नवंबर की तारीख में बैक डेट में कोई बुकिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर उस बैक डेट को एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब है कि उसमें एरर है, बैक डेट में तो आप बुकिंग कर ही नहीं सकते। और अगर वो सॉफ्टवेयर आपको रोक देता है और कहता है कि बुकिंग कैन नॉट बी मेड, एक एरर मैसेज आ जाता है कि बुकिंग कैन नॉट बी मेड इन बैक डेट्स, सो इसका मतलब ये है कि आपका जो टेस्ट केस बनाया आपने, वो सॉफ्टवेयर उसमें पास हो गया। ठीक है, सो आप क्वालिटी टेस्ट केसेस बनाते हैं, इफेक्टिव टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद आप रिपोर्ट्स, जिसने हमने पहले भी बात की थी कि हेल्पफुल प्रॉब्लम रिपोर्ट्स जो है वो आप इशू करते हैं ताकि इन प्रॉब्लम्स को लेटर ऑन रेक्टिफाई किया जा सके, ठीक किया जा सके। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग। टेस्टिंग की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, पहले तो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल देखें। प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या है? मेनली प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, उसके बाद जो है वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती हैं, कस्टमर और क्लाइंट जो है वो बैठते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, ऑन साइट सर्वेज होते हैं, क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स बताता है, एनालिस्ट जो है वो रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, फिर कोडिंग की जाती है, फिर टेस्टिंग की जाती है वगैरह। सो ये, और जब ये आखिर में सॉफ्टवेयर बन जाता है, सो क्लाइंट को हैंड ओवर किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल है, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। और स्पेसिफिकली मैंने वाटरफॉल मॉडल की एग्जांपल ली, जिसमें एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट और सपोर्ट है या सॉफ्टवेयर हैंड ओवर है। टेस्टिंग की लाइफ साइकिल की अगर बात करें, सो टेस्टिंग में प्रोजेक्ट इनिशिएशन है, जाहिर है प्रोजेक्ट आपने इनिशिएट किया, फिर आप सिस्टम को स्टडी करते हैं, और सिस्टम को स्टडी करने के बाद आप टेस्ट प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, याद रखिए कि जिस तरह क्वालिटी बिल्कुल सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के बाद का कोई काम नहीं है, बल्कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दिस सॉफ्टवेयर वो क्वालिटी के डिफरेंट एक्टिविटीज चलती रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह टेस्टिंग जो है वो भी कोई एंड एक्टिविटी नहीं है, बल्कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो चलती रहती है। टेस्टिंग की एग्जांपल आप यहां से भी ले सकते हैं कि अगर प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ है, ठीक है, और आप एज अ सॉफ्टवेयर टीम अपने कुछ लोग क्लाइंट के लिए भेज रहे हैं ताकि उनसे रिक्वायरमेंट्स गैदर की जा सकें, सो आप अपनी टीम के लोगों को आप टेस्ट करते हैं कि हाँ जी आप क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे। ठीक है, आपने क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप क्लाइंट को किस अंदाज से कहेंगे कि मुझे ये चीज या हमें ये चीज दोबारा एक्सप्लेन कर दें। सो आप देख सकते हैं कि इवन इंटरव्यूज कैसे लिए जाएंगे क्लाइंट से, आप वो भी बता रहे हैं। सो टेस्टिंग अगर बिल्कुल इनिशिएशन में है, सो टेस्टिंग सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल के हर फेज में शामिल है, एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और you need to make sure that testing is performed as it is in the entire life cycle of the software. So testing life cycle को देखें तो हमारे सबसे पहले प्रोजेक्ट इनिशिएशन हो रही है, सिस्टम स्टडी आप करें। सिस्टम स्टडी मतलब ओवरऑल क्या किस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर आप टेस्ट प्लान्स बना रहे हैं। टेस्ट प्लान्स में आपने बना लिया, अच्छा जी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई हो जाएंगी तो हम क्या चीज़ टेस्ट करेंगे, डिज़ाइन जब हो जाएगा तब हम क्या चीज़ टेस्ट करेंगे, कोडिंग में हमने एग्जैक्टली क्या चीज़ टेस्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद अगर बाकी फेजेस हैं उसमें टेस्ट करने की क्या चीज़, अगर हम टेस्ट कर रहे हैं और एरर्स आ गए, ठीक है, एरर्स और बग्स हमने फाइंड आउट कर लिए, सो उनको रिपोर्ट कैसे करना है, उनको रिपोर्ट किसको करना है, जिस टीम लेट्स से डिज़ाइन की फेज में अगर एरर आए हैं तो डिज़ाइन की टीम को मजीद कितना वक्त देना है कि वो एरर्स आ जाए, एरर की सीवियरिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें आप टेस्ट प्लान में करते हैं। फिर डिज़ाइन टेस्ट केसेस, जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे देखा, टेस्ट केस आप बनाते हैं, टेस्ट केस सिनेरियो बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। वो टेस्ट केस जो आपने बनाए हैं वो मैनुअल भी हो सकते हैं, वो ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं। एक टेस्ट केस जो मैंने पिछली स्लाइड में एग्जांपल दी वो ये हो सकता है कि आपने एक रॉन्ग इनपुट देते हैं
या जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है एक फाइल अपलोड करने की, उसके अलावा अगर आप या उससे एक्सीड करते हैं, ठीक है, या बैक डेट में आप कोई बुकिंग करते हैं, ठीक है, सो ये आपने टेस्ट केस बनाया, डिजाइन किया, इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर कहीं पे भी एरर आ जाता है तो उसको आप रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, रिपोर्ट, यू रिपोर्ट डिफेक्ट्स, यू रिपोर्ट एरर्स और यू रिपोर्ट बग्स, ठीक है, रिपोर्टिंग कर ली, एरर्स आपने फाइंड आउट कर लिए, उनको रिपोर्ट किए जाते हैं, उसके बाद रिग्रेशन टेस्ट किया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है और लास्टली समरी रिपोर्ट जो है वो भिजवाई जाती है। सो ये पूरी जो है वो टेस्टिंग की लाइफ साइकिल है। अच्छा जी, प्रोसेस मॉडल्स डिफरेंट हो सकते हैं और हर प्रोसेस मॉडल के लिए आपकी जो टेस्टिंग है वो डिफरेंट हो सकती है। मतलब अगर हम शुरू में देखें 1960s में जो है वो हमारे पास वाटरफॉल मॉडल था। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं, उनमें चेंजेस आई हैं। 1960s में वाटरफॉल मॉडल जो है वो बड़ा अच्छा यूज होता था। फिर लेटर 1970s में वी मॉडल आया, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल आया, वी मॉडल आया। 1980s में इस तरह रब मॉडल आया और 2000 में जो है वो एजाइल मॉडल आया। तो ये इवॉल्व हो रहा है। इसी तरह टेस्टिंग जो है वो भी इवॉल्व हो रही है। 60s में जो है वो वाटरफॉल मॉडल जिसके रिक्वायरमेंट डिजाइन कोड एनालिसिस टेस्ट करते थे, ये काफी था। 70s में हमारे पास वी मॉडल था जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन थी, ठीक है, एनालिसिस था। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के लिए आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते थे, एनालिसिस के लिए आप सिस्टम टेस्टिंग करते थे, इसी तरह डिजाइन के लिए आप जो है वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते थे और कंपोनेंट डिजाइन के लिए आप यूनिट टेस्टिंग करते थे। सो ये सारी चीजें आपने वी मॉडल में आप करते थे। इसी तरह आपके पास 1980s में जो है वो RUP रब मॉडल था। 2000 में एजाइल अप्रोच जो है वो प्रपोज की गई और एजाइल अप्रोच जो है वो वाइडली यूज की जा रही है। सो प्रोसेस मॉडल जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हिस्ट्री में इवॉल्व होते रहे हैं। इसी तरह टेस्टिंग जो है वो भी इवॉल्व होती रही है। टेस्टिंग कैसे इवॉल्व होती गई है, आइए इस स्लाइड में देखते हैं और यहां पे आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि हाउ टेस्टिंग हैज चेंज्ड और इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। सबसे पहले अगर आप राइट मोस्ट पे देखते हैं, सो 1960s में ये था कि यहां पे ये आपका कोई कोडर बैठा है, ठीक है, ये कोडर जो है वो कोई कोडिंग कर रहा है, ठीक है। सो और अगर उसका कोई दूसरा कोलीग या कोई और टीम का मेंबर आके कहता है कि भाई हम टेस्टिंग करते हैं, सो उसको बड़ा अजीब लगता था। व्हाट, आई हैव डन द कोडिंग एंड नाउ यू वांट टू टेस्ट इट, व्हाई डू यू वांट टू टेस्ट इट, वी हैवंट गॉट टाइम फॉर इट, ठीक है। तो मतलब बड़ी अजीब सी बात 1960s और 1980s तक ये लगती थी कि जो चीज आपने बना लिया उसको टेस्ट करने की क्या जरूरत है, वो, और ना ही टेस्टिंग की कोई अहमियत दी जाती थी और ना ही टेस्टिंग के लिए कोई सेपरेट टाइम रखा जाता था। अगर टेस्टिंग को ना ही आपने कोई अहमियत दी, ना ही टेस्टिंग के लिए आपने कोई टाइम स्पेयर किया, तो हम ये जानते हैं कि बग्स आइडेंटिफाई नहीं होंगे, एरर्स उस सॉफ्टवेयर में मौजूद रहेंगे। अगर आपने टेस्टिंग नहीं की, एरर्स होंगे तो फिर क्या होगा, आखिर में मसले मसाइल आते हैं। फिर क्या हुआ, 1980s के पहले जो है वो मतलब ऐसा कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं था, कोई जरूरत ही नहीं थी। 1990s तक जो है वो एक नीड बन गई, भाई टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो एक बड़ी ऑप्शनल चीज थी, कर लिया तो ठीक है, अगर टाइम हुआ, अगर बजट हुआ, अगर कोडर जो है वो एग्री हुआ या टीम के बाकी लोग एग्री हुए तो कर लिया तो ठीक है, वरना कोई ऐसा नहीं था। 1990s में क्या हुआ, ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया। टेस्टिंग जी होनी चाहिए, ओके, मे बी यू आर राइट अबाउट टेस्टिंग, इट लुक्स लाइक अ nasty bug made its way into live environment and now customer are complaining, ठीक है। 1990s तक इस चीज को रियलाइज कर दिया गया कि भाई हमें टेस्टिंग को जो है वो अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बाद में एरर्स आते हैं और बाद में एरर्स के वजह से क्लाइंट जो है वो कंप्लेंट्स करता है। क्लाइंट कहता है कि भाई हमने आपको इतना टाइम दिया, हमने आपको इतना बजट स्पेयर करके दिया, आपने हमारा जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो ठीक काम नहीं कर रहा है या उसमें कोई बग वगैरह आ गए। सो 1990s तक ये टेस्टिंग एक नीड के तौर पर सामने आ चुकी थी, ठीक है। और
ईयर 2000 एंड ऑनवर्ड से क्या चीज है, ये टेस्टिंग एक एसेट बन गया है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फिगर में, ठीक है, ये एक बॉस बना हुआ है और ये जोर पे जबरदस्ती जो है या इन्फोर्स कर रहा है टेस्टर्स को, कह रहा है कि भाई टेस्टर्स तुम जो है वो टेस्टिंग करो, तुम मेहनत से टेस्टिंग करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा के टेस्टिंग करो, लॉन्गर हार्डर फास्टर वे में टेस्टिंग करो, बिकॉज दिस इज द टेस्टिंग इज एन एसेट। तो शुरू में टेस्टिंग को कोई अहमियत ही नहीं दी जाती थी, ना ही इसके लिए कोई टाइम, ना ही इसके लिए कोई बजट स्पेयर किया जाता था। 1990s एंड ऑनवर्ड इस चीज को रियलाइज कर दिया गया कि टेस्टिंग जो है वो एक जरूरी चीज है और ये जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और 2000 एंड ऑनवर्ड जो है वो ये चीज मैंडेटरी हो गई है कि अब जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा उसमें टेस्टिंग का सेपरेट फेज होगा, टेस्टिंग उसकी परफॉर्म की जाएगी और टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद एरर्स उसमें से रिमूव किए जाएंगे ताकि अल्टीमेटली क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। सो यू हैव सीन दैट हाउ टेस्टिंग हैज इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। अच्छा, अगेन दूसरे ट्रेंड से देखें तो 1960 से 80 तक नाइस टू हैव एक ऑप्शनल चीज थी, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और आप सिंपली क्या करते थे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते थे, सिस्टम टेस्टिंग करते थे। मेनली आपने कंपोनेंट्स चेक किए कि हाँ जी जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म हो रही है या नहीं। 1990s में जो चीज ऑप्शनल थी वो मतलब शुड हैव के सेंस में आ गई कि होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। सो आपने ग्रे बॉक्स टेस्टिंग उसमें करते थे, ओवरऑल सिस्टम की टेस्टिंग या जो है वो फंक्शनल टेस्टिंग करते थे। 1960s और 80s तक जो है वो आपने पार्ट टाइम टेस्टर ऑप्शनल चीज थी, कोई आ गया टेस्टिंग कर लिया, टाइम हुआ तो ठीक है। 1990s में ये ट्रेंड चेंज हुआ और मतलब आपने फुल टाइम टेस्टर्स डेडिकेटेड पर्सन रखे, ठीक है, जो कि ग्रे बॉक्स टाइप की टेस्टिंग करते हुए आपके सॉफ्टवेयर को चेक करते थे। ईयर 2000 एंड ऑनवर्ड से क्या चीज, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये टेस्टिंग का फेज होना, टेस्टिंग करना अपने सॉफ्टवेयर की, ये मस्ट हैव चीज हो गई है, मैंडेटरी हो गई है, ठीक है। पहले आपके ऑप्शनल थी, फिर हाँ होना चाहिए, अब क्या ट्रेंड है, अब ये टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए। पहले आप पार्ट टाइमर्स लाते थे, फिर आप फुल टाइमर्स थे, अब आप प्रोफेशनल टेस्टर्स, थर्ड पार्टी लोग लाते हैं और वो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो आप वाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, फिट फॉर यूज आप उसको देखते हैं। सो ये सारी चीजें परफॉर्म करने का मकसद ये होता है कि आप ओवरऑल सॉफ्टवेयर को देखें कि ये किस हद तक यूजर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है और अगर इसमें एरर्स और बग हैं तो उनको रिमूव करके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को कैसे एनहांस, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सो दिस इज हाउ द टेस्टिंग हिस्ट्री हैज इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स। टेस्टिंग के अगर हम फेजेस की बात करें, अच्छा, टेस्टिंग के डिफरेंट फेज हैं, मतलब जैसा आपके सॉफ्टवेयर के डिफरेंट फेजेस हैं, डिजाइन, प्लान, डिजाइन, कोड है, ठीक है। और हमने यहाँ पे पिछली स्लाइड में भी हमने देखा कि आप जो है वो क्या करते हैं, टेस्ट प्लान करते हैं, ठीक है। यू एक्चुअली प्लान टेस्ट, यू डिजाइन टेस्ट केसेस, देन यू एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस। यही बात यहां पर भी की जा रही है कि सबसे पहले आप प्लान टेस्ट करते हैं, फिर आप डिजाइन टेस्ट करते हैं, फिर आप एग्जीक्यूट टेस्ट करते हैं और जब एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, टेस्टिंग क्लोज हो जाती है, मतलब आप टेस्टिंग का जो फेज है वो कंप्लीट हो जाता है। पहले भी मैंने बात की कि टेस्टिंग प्लानिंग से क्या मुराद है या प्लान टेस्ट से क्या मुराद है। प्लान टेस्ट में आप मुख्तलिफ काम करते हैं, टेस्टिंग का स्कोप आइडेंटिफाई करते हैं, एक्चुअली टेस्ट क्या करना है, ठीक है। कोड को टेस्ट करना है, डिजाइन को टेस्ट करना है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को टेस्ट करना है, ओवरऑल सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी चेक करनी है, क्या चीज टेस्ट करनी है और क्या चीज टेस्ट नहीं करनी। अगर तो कोड को टेस्ट करने की बात कर रहे हैं और कोड जो है वो 10,000 लाइंस का कोड है, तो आप 10,000 लाइंस के कोड को टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या आप लाइन बाय लाइन जाएंगे, लेट्स से 1 लाइन ऑफ कोड पर जाने के लिए आपको जो है वो कम से कम 5 मिनट्स रिक्वायर्ड है, तो 10,000 लाइंस ऑफ कोड को जो है वो आपको 50,000 मिनट्स, जिसको अगर आप डेज में कन्वर्ट करें तो आपके
1.5-2 साल जो है वो सिर्फ टेस्टिंग में लग जाएंगे, सिर्फ उस कोड को टेस्ट करने में। सो ऑब्वियसली आप स्कोप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या चीज़ करनी है। टेस्टिंग अप्रोच क्या होगी, वाइट बॉक्स करेंगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट एनवायरनमेंट क्या होगी, कौन से टूल्स यूज़ करेंगे। हमारे पास कुछ आप डेडिकेटेड टेस्टिंग टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए लेट्स से टेस्ट किया जा सकता है। कोड में आप वो टूल्स कोड पर अप्लाई करें तो वो कोड को टेस्ट करता है, ठीक है। इसी तरह टेस्ट की एस्टिमेशन, कितनी कॉस्ट लगेगी, टेस्ट स्केड्यूल कब शुरू किया जाएगा, कब ख़त्म होगा, टेस्ट के डिलीवरेबल क्या होंगे। अगर मैंने डिज़ाइन फेज के लिए एक टेस्ट प्लान किया है और वो टेस्ट कंप्लीट हो गया तो डिलीवरेबल क्या होगा, क्या चीज़ आउटपुट आई, उस टेस्ट ने मुझे क्या बताया। क्या जो एरर्स आएंगे वो रिपोर्ट की फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मैं डिज़ाइन टीम को दूंगा, या कोई डायग्राम्स या फिगर की सूरत में दूंगा, या वर्बली मैं कम्युनिकेट करूंगा। ये सारी चीज़ें आप टेस्ट डिलीवरेबल में बताते हैं। एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, डिफेक्ट अगर हैं तो उनको ट्रैक कैसे किया जाएगा, डिफेक्ट प्रिवेंशन कैसे, ये सारी चीज़ें आप प्लान टेस्ट में करते हैं। डिज़ाइन टेस्ट में क्या करते हैं मोटी जो चीज़ें हैं, मेनली जिन चीज़ों पर आप फोकस करते हैं वो है डिज़ाइन टेस्ट, एनालाइज टेस्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो शुरू में आपने प्लान किया, अब आप टेस्ट रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं। हाँ जी, मैं अपने कोड को टेस्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो कोड को टेस्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे डेवलप टेस्ट सिनेरियोज, कोड को टेस्ट करने के लिए मतलब क्या मैं इस कोड को टेस्ट करने के लिए कोई स्पेशल केस डिज़ाइन करूं, कोई इसको मैं स्पेशल इनपुट दूं जिससे मुझे पता चल सके कि ये कोड जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है, एबनॉर्मल हॉल्ट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, कोई एरर मैसेज देता है। सो ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन टेस्ट में करते हैं। सो डेवलप टेस्ट सिनेरियोज, डेवलप टेस्ट केसेस और डेवलप टेस्ट एनवायरनमेंट, ये डिज़ाइन टेस्ट जो सेकंड फेज है इसमें आता है। थर्ड फेज में एग्जीक्यूट टेस्ट है, ठीक है। एग्जीक्यूट टेस्ट में बिल्कुल क्या है कि जो आपने चीज़ें स्पेसिफाई कर ली थी, एक्चुअली अब आप उनको रन करते हैं। अगर कोई टूल स्पेसिफाई किया था, उस टूल को क्या इनपुट देनी है वो आपने स्पेसिफाई किया, अब उस टूल को यूज करते हुए आप एक्चुअली टेस्ट को, कोड को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी भी फेज की अगर आप बात करें, और उस टेस्ट एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई एरर्स, बग्स आ रहे हैं तो आप उनको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट एंड एनालाइज टेस्ट मैट्रिक्स कर रहे हैं, और डिफेक्ट प्रिवेंशन आप परफॉर्म कर रहे हैं। और लास्टली जब ये सारी एग्जीक्यूट टेस्ट हो जाए, फिर उसके बाद आपने जो शुरू में बात की थी कि आपका डिलीवरेबल क्या होगा, ठीक है। डिलीवरेबल अगर एक रिपोर्ट की फॉर्म में है, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है, सो किसी और आर्टिफैक्ट की फॉर्म में है, सो वो डॉक्यूमेंट, वो रिपोर्ट आप प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट के आर्टिफैक्ट्स को फाइनलाइज करते हैं, और वो जो भी रेलेवेंट टीम है, रेलेवेंट लोग हैं, उनको आप हैंड ओवर कर देते हैं ताकि वो अकॉर्डिंगली इन बग्स को रिमूव कर सकें, ठीक है। सो टेस्टिंग के भी फेज हैं, जिस तरह सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के फेज हैं, इस तरह टेस्टिंग के भी फेज हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप एक घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो घर बनाने के लिए पहले आप प्लान करते हैं, भाई घर क्या होना चाहिए, उसमें कितने कमरे होने चाहिए, क्या उसमें कोई रिक्वायरमेंट, अगर घर में 6 लोग हैं और हर बंदे को, घर के हर फर्द को अपना एक कमरा चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने प्लान में किया, फिर आप डिज़ाइन करते हैं। अच्छा जी, घर का जो डिज़ाइन है, जो पेपर डिज़ाइन है या जो बाकी डिटेल्स उससे रिलेटेड हैं, वो आपने कर लिया, ठीक है। आप डिज़ाइन में ये भी बताते हैं कि विंडो का ये साइज़ होगा, डोर का ये साइज़ होगा, इंटीरियर की कलर कम्बिनेशन ये होगी, घर में किचन जो है वो इस साइड पर होगा, सीवरेज का ये निज़ाम होगा। ये सारा आपने डिज़ाइन में किया। एग्जीक्यूट में एक्चुअली जो डिज़ाइन आपने किया उसके अकॉर्डिंगली आप घर को बनाते हैं, और लास्टली घर आपका बन जाता है। बिल्कुल यही चीज़ टेस्टिंग प्रोसेस में भी है। आपने कुछ प्लान किया, फिर डिज़ाइन किया, फिर एग्जीक्यूट किया, और फिर क्लोज किया। दूसरी एक एग्जांपल में ये ले सकते हैं, जैसा शायद पहले भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि 4 लोग जो है वो किसी ट्रिप पर लाहौर जाना चाह रहे हैं। सो दे प्लान, ठीक है, हाँ जी हम 4 लोगों ने लाहौर जाना है, 3 दिन गुजारेंगे, ठीक है। यू देन डिज़ाइन, 3 दिन गुजारेंगे, पहली रात जो है वो हमारी वहाँ पे आएगी, इस गाड़ी पर जाएंगे, इतना खर्चा होगा वगैरह वगैरह। एग्जीक्यूट,
का मतलब यही हुआ कि वो एक्चुअली लाहौर जाते हैं, जहाँ जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ था कि पहली रात यहाँ पे आएगी, ये प्लेसेस विजिट करेंगे, ठीक है, और लास्टली उनका ट्रिप ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सो दीज आर दी फेजेस इन दी टेस्टिंग। अच्छा जी, अगर मेनली बात की जाए तो टेस्टिंग की मेथोडोलॉजी है, मेनली आपकी दो टाइप्स की टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट, इसके अलावा ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी होती है, ठीक है, लेकिन मेनली हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग को इस पर्टिकुलर लेक्चर में एक्सप्लोर करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक ब्लैक बॉक्स के तौर पर कंसिडर किया जाता है। आप उसको इनपुट देते हैं, रिगार्डलेस उस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है आप आउटपुट देखते हैं। अगर डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, परफॉर्म हो रही है, दिस मीन्स दैट योर सॉफ्टवेयर इज वर्किंग फाइन एंड इट हैज पास्ड द ब्लैक बॉक्स टेस्ट। नो नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोग्राम डिजाइन और कोड रिक्वायर्ड। अंदर क्या है, प्रोग्राम कैसे कोड हुआ है, सॉफ्टवेयर कैसे डिजाइन है, ठीक है, इनकी डिटेल्स को कोई भी नहीं देखता, सिर्फ रिक्वायरमेंट और फंक्शनैलिटी देखी जाती है। ये रिक्वायरमेंट जो यूजर की थी वो पूरी हो रही है या नहीं। यूजर चाहता था कि मेरी फाइल जो है वो मल्टीपल फाइल्स अगर मैं अपलोड करना चाहूँ वो अपलोड हो जाए, वो फाइल अपलोड हो रही हैं या नहीं हो रही। कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें कोई कैरेक्टर जो है वो भाग रहा है, ठीक है, और उसने जो है वो कॉइन्स कलेक्ट करने हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अगर इस गेमिंग के सॉफ्टवेयर पर की जा रही है तो ये देखा जाता है कि हाँ जी भागते हुए कॉइन्स कलेक्ट हो रहे हैं और कॉइन्स ऐड अप होते जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। बैकएंड पे क्या चीज चल रही है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इसकी कोई फिक्र नहीं की जाती, इसको नहीं देखा जाता। जैसा मैंने कहा कि आपका सॉफ्टवेयर, आपका प्रोग्राम बिल्कुल एक ब्लैक बॉक्स के तौर पर कंसिडर किया जाता है। सो आप इनपुट देते हैं, जाहिर है रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं और आप अकॉर्डिंगली आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। सो इनपुट, रिक्वायरमेंट्स और इवेंट्स के अगेंस्ट जो आउटपुट आ रही है आप उस सिंपली आउटपुट को चेक करते हैं। लेट्स से आपको एक असाइनमेंट मिली है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि लेट्स से किसी नंबर के फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। अगर 8 फैक्टोरियल है तो वो आप यूजर से इनपुट लें तो वो 8 × 7 × 6 × 5 ऐसा प्रोग्राम लिखें, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये कहती है कि आप सिंपली ये देखें कि अगर आपने उसको 8 दिया तो जो रेलेवेंट आउटपुट है, जो रेलेवेंट रिजल्ट है वो आया है या नहीं आया। अगर आया है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये कहती है कि आपने प्रोग्राम ठीक लिखा है, ठीक है। आपने अंदर कोड में जाकर नहीं देखा कि आपने क्या फंक्शन लिया है, क्या इंटीजर डिफाइन किया है, इंटीजर की लेंथ कितनी थी, इंटीजर की टाइप क्या थी, ठीक है, फैक्टोरियल का क्या फॉर्मूला आपने यूज किया। आप इस चीज को सिंपली इग्नोर करते हैं। ये देखते हैं कि सर्टेन इनपुट के अगेंस्ट रेलेवेंट रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस हुई है। अगर हुई है तो ब्लैक बॉक्स टेस्ट कामयाब हो गया, आपका सॉफ्टवेयर ठीक काम कर रहा है। जबकि इसके मुकाबले में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग स्लाइटली डिफरेंट है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आप यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द इंटरनल प्रोग्राम डिजाइन एंड कोड, ठीक है। जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो जरूर आपको उनका नॉलेज होना चाहिए। पिछली एग्जांपल में जो फैक्टोरियल की एग्जांपल दी है, अगर आप इस पे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अप्लाई करते हैं तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आप ये देखेंगे इंटीजर, आपने इंटीजर की टाइप क्या थी, इंटीजर की लेंथ क्या थी, फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला है वो आपने ठीक अप्लाई किया है या नहीं किया, वेरिएबल आप कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, क्या जो है वो आप गार्बेज वैल्यू तो नहीं उठा रहे, क्या मल्टीप्लाई बाय 0 या डिवाइड बाय 0 का कोई फिनोमिना तो नहीं आप यूज कर रहे। ये सारी डिटेल्स व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में करते हैं। सो आप इनफैक्ट अपने सॉफ्टवेयर को डिटेल में जो उसके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, जो उसके डिजाइन से रिलेटेड चीजें हैं, जो उसके कोड से रिलेटेड चीजें हैं, जो उसके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, वो सारी चीजें वन बाय वन या सारी की सारी आप एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर ठीक परफॉर्म कर रहा है या नहीं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो आपके टेस्ट हैं दे आर बेस्ड ऑन कवरेज ऑफ कोड को सारा चेक करते हैं, कोड की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, पाथ हैं, कंडीशन है, ये सारी की सारी चीजें आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में चेक करते हैं। सो इनफैक्ट आप अपने व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या करते हैं कि आपका
टेस्ट डेटा है, उन कंपोनेंट कोड्स हैं, ठीक है, उसके बाद डिराइव्स हैं, सारी चीज़ें जो है वो आप इनको चेक करके फिर रेलेवेंट आउटपुट को आप देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वाइट बॉक्स टेस्टिंग करनी है तो उसके डिटेल कंपोनेंट्स को एनालाइज करना, डिटेल कंपोनेंट्स को देखना, एक्सप्लोर करना, हर एक को वन बाय वन चेक करना, ये सारे का सारा आपका वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आता है। यू आर नॉट कंसर्न कि टेस्ट आउटपुट क्या है। टेस्ट आउटपुट तो ठीक है, वो तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में चेक कर ली, अब आप इंटरनली चेक कर रहे हैं, ठीक है, अब आप इंटरनली चेक कर रहे हैं। लेट्स से अगर इंटीजर की टाइप, इंटीजर की लेंथ जो है वो 5 कैरेक्टर्स लेट्स से स्पेसिफाई करने से आपका काम हो रहा था, सो व्हाई आर यू टेकिंग 15 कैरेक्टर्स और 20 कैरेक्टर्स, ठीक है, आप तो इस हिसाब से मेमोरी ज्यादा लगेगी, इस हिसाब से एग्जीक्यूशन डिलेज आएंगे। सो ये चीजें आप अपनी वाइट बॉक्स टेस्टिंग में चेक करते हैं। अच्छा जी, टेस्टिंग की जो मेनली लेवल्स हो सकते हैं वो है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। जैसे कि नाम से जाहिर है, यूनिट टेस्टिंग में आप इंडिविजुअल यूनिट्स को, इंडिविजुअल फंक्शंस को, इंडिविजुअल किसी फीचर को आप चेक कर रहे हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि दो फंक्शंस को इंटीग्रेट करके, दो फंक्शंस को मर्ज करके आप चेक कर रहे हैं। और सिस्टम टेस्टिंग में आप ओवरऑल चीजों को चेक कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल ये ली जा सकती है कि लेट्स से वही घर की एग्जांपल लेते हैं, आपने घर कंस्ट्रक्ट कर लिया है या घर की कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, उस पर यूनिट टेस्टिंग क्या है? यूनिट टेस्टिंग से मुराद ये है कि आप लेट्स से किसी एक रूम का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हाँ जी, इस रूम में जो दीवार की विड्थ रिक्वायर्ड थी वो है या नहीं, छत का जो लेवल था वो है या नहीं है, ठीक है। यूनिट में एक है उस रूम का स्ट्रक्चर, एक और यूनिट उस घर की कंस्ट्रक्शन में हो सकता है उसका सीवरेज का निज़ाम, एक और यूनिट हो सकता है उस घर में वेंटिलेशन, खिड़कियां और रोशनदानों का निज़ाम, एक और हो सकता है फर्श के लेवल का निज़ाम, ठीक है। सो ये सारे यूनिट्स हैं, तो इन सारे यूनिट्स को आप इंडिविजुअली चेक करते हैं। सीवरेज का निज़ाम अलग से चेक किया, रोशनदान और खिड़कियां अलग से चेक की, ये यूनिट्स हैं। इंटीग्रेशन टेस्ट में आप क्या करते हैं कि चंद यूनिट्स को मिलाकर चेक करते हैं कि अगर वो रूम जो है वो एक वॉशरूम है, ठीक है, उसका बिल्डिंग, उसका स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर ठीक होने के साथ साथ क्या सीवरेज का निज़ाम भी उसमें ठीक काम कर रहा है। सो दो यूनिट्स को आपने चेक किया, ठीक है। इसी तरह दीवारें ठीक हैं, लेकिन दीवारों के साथ जो है वो दूसरा यूनिट था खिड़कियां और दरवाजे, वेंटिलेशन, क्या ये भी ठीक है? ठीक है, खिड़कियां भी ठीक हैं, दरवाजे भी ठीक हैं, उस रूम का स्ट्रक्चर भी ठीक है, क्या वेंटिलेशन भी ठीक है, क्या उस रूम में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जो कि एक और यूनिट है वो भी ठीक है। सो ये आपने डिफरेंट यूनिट्स को इंटीग्रेट करके, मर्ज करके टेस्ट किया। और लास्टली सिस्टम टेस्टिंग में क्या है, आप ओवरऑल सारे का सारा घर चेक करते हैं, देखते हैं कि हाँ जी ओवरऑल जो घर जिस रिक्वायरमेंट, जिस पर्पस के तहत बना है वो मीट हो रहा है या नहीं। बिल्कुल यही चीज आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी है। आपके सॉफ्टवेयर के ढेर सारे यूनिट्स हो सकते हैं, आप इंडिविजुअल यूनिट्स को अगर टेस्ट करते हैं, किसी सर्टेन फंक्शन को टेस्ट कर लिया, एनालिसिस फेज की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन चेक कर ली, सर्टेन यूज केस डायग्राम को चेक कर लिया, ईआरडी एक और यूनिट है उसको चेक कर लिया, डीएफडी एक और यूनिट है उसको चेक कर लिया। सो ये यूनिट टेस्टिंग है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, ठीक है, ईआरडी आपने बना ली, ठीक है, क्या इसको मजीद एनहांस करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। डीएफडीज आपने बना ली, डीएफडी के बाद लेवल 0 और लेवल 1 डीएफडीज ये आपस में ठीक एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं कर रही, ठीक है। सो ये आपने डिफरेंट यूनिट्स को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया। और सिस्टम टेस्टिंग ओवरऑल आप सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स थी उन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट वो सॉफ्टवेयर रेलेवेंट आउटपुट फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये आपकी सिस्टम टेस्टिंग है। सो ये दीज आर द लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। लेट अस हैव a brief discussion on this from the software perspective. So unit testing में क्या है, टेस्ट each module individually, चाहे वो एनालिसिस या डिजाइन का फेज है या कोडिंग का फेज है, आप हर मॉड्यूल को, हर फंक्शन को इंडिविजुअली चेक करते हैं और हर मॉड्यूल, हर फंक्शन को आप एज अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। लेट्स से मैंने एक फंक्शन लिखा जो कि यूजर से इनपुट सेलेक्ट करेगा, उसको स्टोर करेगा, फिर उस पर जो है वो कोई सर्टन
फॉर्मूला अप्लाई करके कोई रेलेवेंट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ये एक मॉड्यूल है। यूनिट टेस्टिंग ये कहती है कि आप देखें कि ये फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं। आप ये देखें कि इस फंक्शन में जो वेरिएबल्स डिफाइन हैं वो ठीक डिक्लेयर्ड हैं या नहीं, जो फॉर्मूला यूज किया जा रहा है वो ठीक है या नहीं। सो आपने यूनिट को टेस्ट कर लिया। अगर वो यूनिट एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है तो क्या एंटिटीज ठीक डिफाइन है या नहीं, क्या उनके दरमियान रिलेशनशिप रेलेवेंट और एक्यूरेट है, क्या रिलेशनशिप के बाद जो उनकी कार्डिनैलिटी वगैरह और मोडालिटी है वो ठीक डिफाइन है। सो ये आपने यूनिट टेस्टिंग में चेक कर लिया। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जब आपके सारे यूनिट्स इंडिविजुअली चेक हो जाएं, फिर आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, सर्टेन मॉड्यूल्स को मिलाकर चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स से आपका एक कोड है जो कि 300 लाइंस ऑफ कोड है और उसमें जो है वो टोटल 10 फंक्शंस हैं, 10 फंक्शंस हैं या 10 मॉड्यूल्स हैं। तो यूनिट टेस्टिंग में आपने मॉड्यूल 1 को टेस्ट किया, मॉड्यूल 2 को टेस्ट किया, मॉड्यूल 3 को टेस्ट किया। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आप क्या करने हैं कि इन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके टेस्ट कर रहे हैं, सिस्टमैटिक टेस्टिंग कर रहे हैं। यू आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स एसोसिएटेड विद इंटरफेसिंग। एक मॉड्यूल जब दूसरे मॉड्यूल को के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, लेट्स से एक मॉड्यूल ने दूसरे मॉड्यूल को कोई आउटपुट देनी है जो कि दूसरा मॉड्यूल एज ए इनपुट लेगा, इंटीग्रेट ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और इसकी टाइप्स हो सकती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जिसकी डिटेल्स में हम अभी नहीं जा रहे, लेकिन जस्ट एक नाम के तौर पर आप देख सकते हैं। टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो सकती है, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो सकती है, मिक्स्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, और लास्टली आपके पास सिस्टम टेस्टिंग है। सिस्टम टेस्टिंग में आप क्या करें हैं, एज अ होल सिस्टम एज अ होल इज टेस्टेड टू अनकवर रिक्वायरमेंट एरर्स। रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट वो सारी चीजें पूरी हुई हैं या नहीं हुई। verifies that all system element work properly and that overall system function and performance has been achieved। ठीक है, सो सिस्टम टेस्टिंग में आप ओवरऑल सिस्टम को देख रहे हैं। इसकी भी टाइप हो सकती हैं, इन टाइप्स की डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन टाइम बिंग सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो सिस्टम टेस्टिंग की टाइप्स हो सकती हैं वो अल्फा टेस्टिंग है, बीटा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ये डिटेल्स थी सिस्टम टेस्टिंग के बारे में। आइए एक और एग्जांपल के थ्रू आपको यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग का फिनोमेना बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आप एक गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। एक गाड़ी के डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं। उसका इंजन जो है वो एक यूनिट है, उसका गियर बॉक्स उसका दूसरा यूनिट है, उसका सस्पेंशन या व्हील सिस्टम तीसरा यूनिट है, उसकी बॉडी चौथा यूनिट है, उसका इंटीरियर या केबन जिसमें सीटिंग्स होती हैं उसका एक और यूनिट है। सो आप क्या कर रहे हैं कि आप यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपने इंजन को चेक किया कि क्या इंजन ठीक चल रहा है, ठीक काम करेगा, जितने हॉर्स पावर है वगैरह वगैरह, ये एक यूनिट है। इस तरह बाकी यूनिट आपने गियर बॉक्स को चेक किया, एक और यूनिट है व्हील सस्पेंशन सिस्टम, आपने वो चेक किया। ये सारे इंडिविजुअली आपने चेक किए और आप क्या करते हैं, इन पे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज करते हैं। मतलब इंजन के हर कंपोनेंट को आप चेक करते हैं, गियर बॉक्स के हर कंपोनेंट को आप चेक करते हैं। सो ये यूनिट टेस्टिंग आपने कर ली। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये है कि आप दो यूनिट्स या दो से ज्यादा यूनिट्स इंटीग्रेट मर्ज करके ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। लेट्स से इंजन और गियर बॉक्स, ये दो यूनिट्स जब आपने मिलाए, क्या गियर बॉक्स और इंजन ठीक काम कर रहा है? ठीक है, ये आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई। या दूसरे केस में इंजन और गियर बॉक्स दो यूनिट्स हो गए, तीसरा यूनिट है गाड़ी की बॉडी। तो इंजन और गियर बॉक्स गाड़ी की बॉडी में फिक्स आ रहे हैं, एक्यूरेटली आ रहे हैं। सो ये आपने इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर ली। और सिस्टम टेस्टिंग ये है कि आप ओवरऑल गाड़ी को देख रहे हैं। ठीक है, कि गाड़ी सारे जो एक गाड़ी से रिक्वायर्ड है, लेट्स से कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट थी कि वो स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए या वो पैसेंजर कार होनी चाहिए, नॉर्मल कार होनी चाहिए, सो वो कार कंप्लीट हो गई है। वो स्टार्ट करने पर जो है वो इंजन उसका स्टार्ट हो जाता है, गियर बदलता है, ठीक ड्राइव करती है, सीटिंग है। ठीक है, सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स वो कार पूरी कर रही है। तो इसको हम कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल इसी तरह है, आप उसके यूनिट्स को चेक करते हैं, फिर यूनिट्स को इंटीग्रेट करके आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं और ओवरऑल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट
जो आपकी कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दी थी उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पर ओवरऑल सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। सो these were the main topics that we have discussed in today's lecture. Let us proceed to the summary of today's lecture. आज के लेक्चर में हमने टेस्टिंग क्या है, क्यों की जाती है, टेस्टिंग की ज़रूरत क्या है, टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में क्या था, इसको हमने डिटेल में देखा। हमने देखा कि टेस्टिंग एक ऑप्शनल चीज़ 1960s तक कंसिडर की जाती थी, हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कोई मसला नहीं है। लेटर ऑन ये एक ज़रूरत के तहत इमर्ज हुई और इस चीज़ को रियलाइज़ किया गया कि अगर टेस्ट ना किए जाएं तो मसले आ सकते हैं या मसले आए हैं। जबकि ईयर 2000 लेटर ये चीज़ मैंडेटरी हो गई है, टेस्टिंग ज़रूर होनी चाहिए। टेस्टिंग अगर नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अचीव नहीं हो सकती, और टेस्टिंग के लिए आप डेडिकेटेड रिसोर्सेज, पर्सन, प्रोफेशनल्स, बजट, टाइम, मनी ये आप स्पेयर करते हैं। इसके अलावा हमने जो है वो ये भी देखा कि टेस्ट को प्लान किया जाता है, फिर टेस्ट को डिज़ाइन किया जाता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर टेस्ट को एग्जिट किया जाता है। हमने डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग देखी, जैसे कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और लास्टली हमने ये भी देखा कि एक सॉफ्टवेयर पे यूनिट टेस्टिंग भी अप्लाई की जाती है, सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी होती है और ओवरऑल सॉफ्टवेयर की सिस्टम टेस्टिंग भी होती है। These were the summary of today's lecture. In our next lecture, we are going to discuss the following topics. Our discussion on testing will continue. We will further explore unit testing, system testing. We will further explore some more basics of software testing. हम other dimensions और other aspects से हम देखेंगे, और especially जो real world challenges हैं टेस्टिंग के साथ जो एसोसिएटेड हैं, हम इंशाल्लाह उनको भी डिटेल में देखेंगे। आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर। आई सी यू विद मोर डिटेल्स। अंटिल देन, टेक केयर, बाय एंड अल्लाह हाफिज।